Today we will see investment casting process. Investment casting is a special type of molding process. It is used for intricate pattern which are difficult to make using other processes. Now rapid prototyping and other methods are there, additive manufacturing, they are making the mold, but for repetitive type of means casting in batches, this is most suitable. Means you can see here, and this process is also known as lost wax pattern, lost wax. So mm lost wax pattern, it means these patterns are made by wax. You can see that wax patterns are made. Now you will ask me how these wax patterns are made. Wax patterns are made first by master pattern. Master pattern is first created maybe by rapid prototyping or by hand carving or what. One such this um, pattern is master pattern is prepared from wood or metal or aluminum, and then from that pattern you can make such wax pattern. Okay, wax instead of molten metal you now make wax pattern. Okay, now these wax pattern are what we do is this wax pattern, wax is easy to scrape. Okay, it is easy to scrape and give the shape. That's why this just like your thermocol, people do the decoration thermocol, it is easy to cut, easy to scrape. Like that wax is very easy to give very intricate shapes. So from that wax pattern, these various wax patterns we are this prepared, and they are connected to one रनर. ये एक रनर है यहाँ पे, वो एक रनर का भी एक पैटर्न हम लोग तैयार करेंगे ऐसा, और उसको हम लोग ऐसा कनेक्ट करेंगे। ये अलग अलग पैटर्न करने, इसी पैटर्न के शेप का हमको कास्टिंग चाहिए. ऑफ कोर्स विथ सर्टेन अलाउंसेस we are doing that as we have mentioned in the pattern design. So these patterns are made, and it is connected to the stem. This is nothing but a stem, runner or stem. And what we do is then these patterns, from that pattern we are put that this pattern in the ceramic slurry. We put this pattern in the ceramic slurry. So what happens, over this wax pattern ceramic slurry coating is formed. Now what we do is we heat this ceramic slurry, so that what happens, uh, at sufficient temperature wax will be melted and come out of this ceramic slurry. However, ceramic slurry, that temperature is higher because that is refractory material. That's why this remains outside, and inside what was that wax was there, that is now melted out. So that molten wax will come out. That's why this process, investment casting process, is also known as lost wax type process. Why it is called lost wax? Because earlier which was wax was there, now it is lost after heating, and what remains is ceramic pattern. That ceramic mold remains. So this ceramic mold, it is similar to your similar स्टाइल एज दैट ऑफ शेल मोल्डिंग. मतलब ये एक शेल तैयार हो गया, आपका सिरेमिक शेल तैयार हो गया. अभी आपको क्या करना है कि आप जो मोल्टन मेटल आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, व्हाइट मेटल, जिंक, जो भी आपको चाहिए वो आप लैडल से इस पे पोर करो. पोर करने के बाद आप क्या करो, इसको वाइब्रेटर में ऐसा डाल के पूरा इसको, या फिर चिपिंग हैमर से इसको, ये जो बाहर का सिरेमिक स्लरी है उसको निकाल दो. तो अंदर का जो गैप में जो भरा है वो आपका मोल्टन मेटल से भरा हुआ, ये अलग अलग आपका कास्टिंग तैयार हो गया. अभी ये आपको तो इंडिविजुअल ये शेप चाहिए ना, तो आप यहाँ से ऐसा कट कर दो, इसको ऐसा कट कर दो, तो एंड फिनिश इट, देन यू विल गेट फाइनल कास्टिंग. और ये जो मटेरियल जो बचा है वो फिर से रीयूज के लिए आप फर्नेस में डाल दो.
तो बच्चों प्रोसेस समझ में आया आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग? सर एक डाउट है। बोलो। सर समझो कि वैक्स को ही हम लोग ने सेरामिक में डाला तो वो तभी मेल्ट हो जाएगा ना? वैक्स को सिरेमिक में डालेगा तो उसकी मेल्ट नहीं हो शेल्फ। जाएगा। नहीं 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 नहीं, वैक्स वैक्स को जो, तो इट डिपेंड ना, उसका भी एक मेल्टिंग टेम्परेचर है ना, दैट इज मेंटेन। सिरेमिक सेल जो है ना, सिरेमिक स्लरी रहता है रे। मैं आपको बताता, ये ऐसा, ये ना लिक्विड स्लरी रहता है रे, तो वो उसके ऊपर कोटिंग हो जाता है ना। मैं आपको ये दिखाता है, 1 मिनट। मेरे को आया डाउट तुम्हारा समझ में कि वो कैसा होता है, ये तुमको देखना है, तो मैं बताता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे उसका ये था। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये एनिमेशन देखो आप, तो मालूम पड़ेगा। वो सिरेमिक स्लरी रहता है, इसलिए वो कोटिंग लिक्विड रहता है, तो उसका कोटिंग बैठता है, और वो कूल हो जाने के बाद सिरेमिक हार्ड हो जाता है ना। तो ये हमने एक पार्ट्स आर फर्स्ट मोल्डेड इन वैक्स, ये एक पैटर्न तैयार किया हमने। अभी ये जो तुम्हारा स्टेम है लिक्विड, उसको हमने, ये देखो सिरेमिक स्लरी में डुबा दिया उसको, तो वो लिक्विड स्लरी है। ये देख सिरेमिक स्लरी, अभी मोल्ड थिक हो गया कूल होने के बाद। अभी उसको हमने हीट किया तो वो वैक्स निकल गया देखो, और सिरेमिक स्लरी जो था वो और हार्ड हो गया। अभी वो गैप तैयार हुआ, उसमें हमने मोल्टन मेटल डाला। समझ में आया क्या बेटा? हेलो। हाँ हाँ हाँ, सर। मैं फिर एक बार, मतलब ये तो उन्होंने एनिमेशन किया है। मैं थोड़ा सा और डिटेल जाता हूँ। मैंने, मेरा एक ये था, जस्ट अ मिनट। जस्ट फाउंड्री 1 में तो वो नहीं था, फाउंड्री 2 में होगा शायद। लेट मी सी इट। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस एनिमेशन दिखा है। अभी थोड़ा सा आपको प्रोसेस दिखाता है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। हाँ, ये जरा देख लो आप। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस कौन से रेंज में आता है? अभी आप बोलेंगे रॉकेट क्यों दिखाया, तो इसके जो पार्ट्स है, ये इंट्रिकेट पार्ट्स, वो भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से किए जाते हैं। एरोप्लेन के जो पार्ट्स है, इंट्रिकेट पार्ट्स, कंट्रोल सिस्टम के वगैरह, ये भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से किए जाते हैं। द रेंज ऑफ दिस प्रोसेस इज सो बिग। ये देखो, ये मोल्ड, और ये जो भी बनाते हैं ना ये, या फिर इसका जो बॉल बनाते हैं गोल्फ का, ये मेरा ये तो आपका फाइटर प्लेन्स के पार्ट्स, ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाते हैं। टैंक में से जो कंट्रोल के पार्ट्स है वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाते हैं। ये जो इंट्रिकेट पार्ट्स है, देखो ये पूरा मास्क वगैरह बनाया था, ये सब ऐसा आपको रेगुलर इससे बनाना मुश्किल है, तो वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाते हैं। तो ये देखो तुम्हारा, एक्चुअली ये सिरेमिक मोल्ड था, इसका जो टर्नओवर है वो देखो कितने डॉलर का है। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में। इन्होंने एक फिल्म तैयार की है इसके ऊपर। मैंने बहुत साल पहले, मेरे को लगता है 5-6 साल पहले मैंने वो डाउनलोड कर दिए, तो बच्चों को दिखाने के लिए अच्छा है। ये देखो, ये एक मास्टर पैटर्न अपना तैयार हुआ। और ये ऐसे तैयार तैयार इन्वेस्टमेंट, मतलब उससे उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? ये सब पैटर्न्स है ना, ये ऐसे स्टेम्स को लगा दिए, बीच बीच में जो वर्टिकल स्टेम रहता है ना उसको लगा दिए, एंड सी द वेरियस पार्ट्स, वैरायटी ऑफ पार्ट्स दे हैव प्रिपेयर्ड। वैरायटी ऑफ पार्ट्स देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स है ना ये आप ऐसा रेगुलर सैंड मोल्डिंग से करते जाओ तो आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वैक्स का यूज किया, कि वैक्स करके मास्टर पैटर्न ये इससे बनाएंगे, मतलब अपने मशीनिंग से, उससे वैक्स पैटर्न बनाएंगे। ये देखो, ये मास्टर पैटर्न उन्होंने बनाया। ये मास्टर पैटर्न का ड्राइंग है उनका, उनको ड्राइंग देने के बाद उस ड्राइंग के हिसाब से उन्होंने पहले मास्टर पैटर्न बनाया। वर्नियर से मेजर कर रहे हैं उसका एक्यूरेसी वगैरह। अभी ये देखो, ये सब उसके एप्लीकेशन है, ये सब बनाए हुए पार्ट्स वगैरह। सो मास्टर पैटर्न, ये देखो, ये स्मॉल, ये हाथी भी बनाया उन्होंने, मतलब
बिग रेंज, स्मॉल टू बिग ये रेंज है इसके लिए, बेसिकली इंट्रिकेट पैटर्न बनाने के लिए। अभी ये लड़की उधर क्या बना रही है, ये वैक्स पैटर्न अलग 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 बना रही है। हाँ, ये देखो ये वैक्स पैटर्न बना के उसने रख दिए, क्योंकि एक साथ हमको इसको सिरेमिक स्लरी में डुबाना है। तो उसने वो देखो ये वैक्स पैटर्न उसने बना दिए, देखो ये दिख रहा है ना, वो वैक्स चमक रहा है वो। हाँ, ये देखो ये वैक्स पैटर्न उसने बना दिए। अभी ये वैक्स पैटर्न वो पैटर्न की एक असेंबली बनाई। ये देखो ये लेडी क्या कर रही है, वो तो उसको गर्म करके वो ये जोड़ रही है वो पैटर्न। एक साथ हमको कितने कास्टिंग मिलते हैं देखो ना, ये जो रनर या स्टेम जो बोलते हैं ना, इसको वो जोड़ रही है। देखो ये ऐसे ऐसे असेंबली तैयार की उसने ये पूरी। अभी इस असेंबली को किस में डालना है हमको, सिरेमिक स्लरी में डालना है ना। वो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो आएगी वीडियो के हिसाब से। देखो इन्होंने बना दिया है इसको अपना वैक्स पैटर्न, तो शेल बिल्ड किया उसने। अभी ये शेल सिरेमिक स्लरी में डाल दिया। सिरेमिक स्लरी लिक्विड है देखो। हाँ, वो लिक्विड है तभी वो कोटिंग होगा ना, जैसा अपन पेंटिंग करते हैं वैसा। हाँ, या प्लास्टर करते हैं वैसा, पेंटिंग करते हैं वैसा, उसका सिरेमिक स्लरी में उसको डुबा दिया, तो सिरेमिक स्लरी का कोटिंग उस पे आ गया, देख लो भाई। हाँ, लेकिन उसको स्ट्रेंथ नहीं है सिरेमिक को, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है, वो सिरेमिक स्लरी हार्ड हो जाती है, उसका ताकत आ जाता है, और अंदर का जो वैक्स पैटर्न है वो मेल्ट हो जाता है। तो अभी उसको उल्टा करते हैं हम लोग, इसको इसमें डालते हैं, फर्नेस में डालेंगे अभी। हाँ हाँ, नहीं ये देखो, हाँ सिरेमिक स्लरी में डाल के ऊपर से और वो सैंड भी डाला है ऐसा। हाँ, सिरेमिक का ऐसा ये भी डाला है। तो वो क्या हो गया, पक्का हो गया ना अभी। हाँ, ये देखो एकदम पक्का हो गया। जस्ट अ मिनट। हाँ, किसका, तो ये देख लो आप। हाँ, ये देखो दूसरे एक प्रोसेस उन्होंने दिखाया। ये देखो पूरा डुबा के सिरेमिक स्लरी में डाल दिया उन्होंने, तैयार किया। अभी क्या करने वाले हो, ये जो है ना, ये उसको मेल्ट करके निकालना है, मोम को। उसको निकाल दिया हीट करने के बाद। हीटर में डालने के बाद, फर्नेस में डालने के बाद वो मोम पूरा निकल गया। यानी तुम्हारा वैक्स पूरा निकल गया। अभी बचा कौन है, वो कैविटी बचा है जो पैटर्न की थी, और बाहर में कौन है, सिरेमिक्स। हाँ, तो वो सिरेमिक है। थोड़ा सा उसको हीट कर रहे हो लोग, ताकत आनी चाहिए ना उसको, हीटेड बेकिंग बेकिंग कहते हैं वो। अभी वो मोल्टन मेटल डाल रहे हैं, देखो ये देखो मोल्टन मेटल अभी डाल रहे हैं। वो ऊपर एक ओपनिंग था ना, उसमें से मोल्टन मेटल डाल रहे हैं। वहां से इसने बाहर निकला ऊपर स्टार्ट में, उसको वो हॉपर बनाया ना, ये देखो। हाँ, ये देखो उसको डाल दिया। अभी अलग अलग जो कास्टिंग का जो गैप्स तैयार किया था उसमें चला जाएगा। एंड नाउ एंड यू विल गेट मेटल पैटर्न। अभी ये शेल रिमूव किया, तो अंदर जो गैप में जाके बैठा था ना मेटल पैटर्न, ये मेटल कास्टिंग तैयार हो गया वो। इसको वाइब्रेटर में डालने के बाद वो सब सिरेमिक निकल रहा है, देखो हार्ड एंड ब्रिटल रहता है ना सिरेमिक, वो निकल गया। तो फर्नेस से बाहर निकला, अपने कास्टिंग तैयार हो गए। कितने कास्टिंग तैयार हो गए, जैसे वो बनाना का ये रहता है ना पूरा। हाँ, वैसा एक ये था। अभी ये ग्राइंडिंग वगैरह करके उसको, ये कटर ग्राइंडर है, दिस इज नोन एज कटर ग्राइंडर। तो कटर ग्राइंडर से उसको निकाल दिया है। आप दूसरे मेथड से भी निकल सकते हो, बैंड सॉ से निकल सकते हो, हाँ, हैक्सॉ से निकल सकते हो। अभी वो फिनिश कर रहे हो उस कास्टिंग को, अलग अलग निकल के एक साथ। कितना हार्डनेस टेस्ट चालू है, ये देखो अपन रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट करने वाले हैं ना अभी शाम में, अगले एक्सपेरिमेंट में।
हार्डनेस टेस्टिंग चालू है, तो ये उसका डायमेंशन वगैरह मेजरमेंट चालू है पूरा। तो ये इंट्रिकेट डायमेंशन, ये गेजिंग चालू है, बराबर उसी हाइट में आया है क्या वगैरह, और उसके रिकॉर्ड्स चालू है अभी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कि कितने एक्यूरेट तक आ गया। सो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड दिस? गिव मी द आंसर। यस सर। सो ये हाँ बोल दो भाई। वो सिरेमिक मोल्ड से कैसे निकालते हैं मेटल को बाहर? सिरेमिक मोल्ड से निकलते मतलब निकल नहीं सकते, इसीलिए तो सिरेमिक को तो तोड़ना है। तो सिरेमिक की प्रॉपर्टी क्या है? कोलैप्सिबिलिटी। मतलब सिरेमिक मोल्ड को बाद में वाइब्रेटर में ये करने के बाद वो सिरेमिक मोल्ड निकल गया ना। एक मिनट, ये कहाँ गया है? एक मिनट, मैं थोड़ा ये हाइड करता हूँ, यहाँ पे रहेगा सिरेमिक। ये देखो, इसके बाद दिखा है सिरेमिक में मोल्ड में मोल्टन मेटल डाल दिया। अभी देखो सिरेमिक मोल्ड को वाइब्रेटर में डाल देते हैं और ऐसा ऐसे हिलाने के बाद सिरेमिक मोल्ड टूट जाता है और अंदर का कास्टिंग, ये देखो शेल रिमूवल, देखा क्या? ए बेटा, हाँ 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 सर। ये क्या गिर रहा है ना, वो तो सैंड, सिरेमिक इज नथिंग बट सैंड ओनली।